नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। पूर्वी भारत के सबसे प्रतीक्षित 3 दिवसीय कैरियर और शिक्षा मेले एजुकेशन इंटरफेस 2025 का उद्घाटन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ। कैरियर प्लानर एडुफेयर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत फिरहाद के माननीय मेयर, शहरी विकास नगर पालिका मामलों के मंत्री श्री शोभन देव चट्टोपाध्याय, माननीय संसदीय मामले कृषि मंत्री अरूप विश्वास, माननीय खेल और युवा मामले बिजली मंत्री आवास मंत्री ने किया। सरदार तरनजीत सिंह, टेक्नो इंडिया ग्रुप के सदस्य मानसी राय चौधरी, सिस्टर निवेदिता की, सत्यम राय चौधरी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दीपक सिन्हा ने कहा, मैं ये एजुकेशन फेयर इसलिए करता हूँ जिससे बच्चों को दिशा मिल सके, लाभ मिल सके और लोगों से आमने सामने बात कर सके। परिवार वाले और जो बच्चे भर्ती लेना चाहते हैं। सर एमसीकेवी के बारे में बताएं और एमसीकेवी क्या काम कर रहा है? Actually, MCKV is a college of 26 years. It is the first self-financed college in the district of Howrah, and at present MCKV is offering BTech programs in 8 courses, as well as MCKV offers MTech in Electronics and Communication Engineering, and also BBA and MBA and BVO courses. ये 8 कोर्सेज है। Yes, and MCKV is NAC accredited A-grade college. It's an autonomous college. Autonomy has been conferred by UGC, and many of its programs are India accredited. और अभी ये कॉलेज में इंजीनियरिंग में क्या क्या सिखा रहा है? Computer science with specialization in data science, computer science with specialization in artificial intelligence and machine learning, then information technology is there, then electrical engineering, electronics and communication engineering, mechanical engineering and automobile engineering. MCKV is the first college, self-financed college, where automobile engineering has been offered as BTech course. Thank you, sir. Sir, your name and designation. My name is Professor Dr. Abhijit Lairi, and I am the principal of the college. Thank you, sir.
आपकी यूनिवर्सिटी अभी क्या क्या काम कर रही है, आप दर्शकों को बताने की कृपा करें। Adamas University having some USP strong point because we have the 10 schools at the same time. Number two, we are the university. The students got the more than one course CTC in a year. It is the first from the private university. Number two, we have the stem cell research centers. It is one of the exceptional centers in our university also. Number three, we affiliated NAC-A. That is the first private university in West Bengal having the NAC-A accreditation. At the same time, getting the NAC-A, that proves that we have the good strength at our university, especially in the field of the research, placement, quality of faculty members and quality of infrastructures. और उसके बाद स्टूडेंट को आप क्या प्रोवाइड करते हो? Actually, we have the environment 24/7 hours. More than 2,000 students are residing inside the campus. More than 100 faculty members also. They are also within the campus. That helps us to create 24/7 hours environment. And our labs and the library used to open midnight and start from the 6 a.m. also. So as a whole, we are also strong in the sports. We rank 13th out of 1,800 universities in Khelo India. And last year also we got the trophy as a university champion within the last 40 years. That this is also the record. So as a whole, we try to accelerate, we try to provide the good environment to the students in terms of the sports, in terms of the academy, in terms of the infrastructure. Thank you, sir. Your name in Professor Dr. Sumit Roy, founder chancellor at Adamas University and the founder chairman of Rice Education and Rice Group Adamas. थैंक यू सर। सर आपका का मेला चल रहा है, ये इसमें हम लोग पैवेलियन दिया है और सारे जो कॉलेज है हमारा उसमें स्कूल छोड़ के बाकी सब कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या 180 से ज़्यादा कोर्स है यहाँ, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा, ITI सभी है। और ये कोर्स में इंजीनियरिंग का बहुत स्टूडेंट है, आर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारा। आप सब जानते हैं आप क्या क्या इंजीनियरिंग में क्या क्या आप सिखाते हैं? आपका हम लोग का कंप्यूटर साइंस, AI, ML, रोबोटिक्स, IoT, डाटा साइंस, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, बायोमेडिकल, फूड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ये सब सारे कोर्स हैं और मैनेजमेंट है। तो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जो प्रोफेशनल नौकरी के लिए जो कोर्स जरूरी है अभी वही कोर्स हम लोग पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। और हम लोग का एक है कि अच्छा स्टूडेंट भी देता है, 60% जिसका नंबर है उसका ऊपर भी हम लोग देता है। 60% के नीचे जो है उसको अप्लाई करने के भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लोग नहीं देता। और लगभग तो 60% के नीचे वाले कहाँ जाएंगे सर? 60% के नीचे वाले जो कोर्स है एक्चुअली बहुत सारा कॉलेज है हमारा जो कट ऑफ मार्क है वो कट ऑफ मार्क हम लोग 60% ही किया है। कोई ना कोई कॉलेज उनको मिल जाएगा, लेकिन हमारे JIS में जो कॉलेज है उसमें 60% हम लोग कट ऑफ कंपल्सरी कर रहे हैं क्योंकि नौकरी के लिए नहीं तो कोई दिक्कत हो जाती है। और प्लेसमेंट भी अच्छा हुआ है इस बार क्योंकि 92% प्लेसमेंट तो हो ही चुका है। 51 लाख हाईएस्ट पैकेज आया है, एवरेज पैकेज मोरलेस 12-13 लाख चल रहा है। इट्स गुड, नॉट बैड। एंड हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसमें इस बार 3 नया कोर्स आ रहा है। एक कोर्स है आपका मास कम्युनिकेशन, एक है इकोनॉमिक्स और एक है इंग्लिश। ये 3 कोर्स अभी हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद सर। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं। मेरा नाम विद्युत मुजुमदार है, मैं JIS का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। थैंक यू सर।
किया, इसमें कौन कौन मिनिस्टर आए? এই মিনিস্টার অরূপ বিশ্বাস, মেয়র বিরাট ববি হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় एंड ऑल द वाइस चांसलर सब था, ये सब है। ये प्रोग्राम आप किस लिए करते हैं? ये प्रोग्राम लास्ट 2 डिकेड से हम लोग कर रहे हैं। ये ऑल ओवर इंडिया से यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें डिफरेंट कोर्सेज लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, डेंटल साइंस, फार्मेसी, मैनेजमेंट, लॉ एंड मास कम्युनिकेशन, ये सब कोर्स का बारे में क्या स्ट्रक्चर है, क्या फैसिलिटी है, क्या प्लेसमेंट है, ये सब बारे में बच्चा लोग को 10+2 का बाद, ग्रेजुएशन के बाद वो लोग बच्चा इंफॉर्मेशन के लिए आते हैं। अच्छा, यहाँ से जो यूनिवर्सिटी आ रही है उनको क्या फ़ायदा होता है? यूनिवर्सिटी का फ़ायदा मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरी ईयर 10+2 स्टूडेंट्स लोग नया नया निकालता है, तो स्टूडेंट्स लोग के लिए क्या है, इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यूनिवर्सिटी उसका जो प्रोसीड्योर है, यूनिवर्सिटी में क्या कोर्सेज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब वो लोग प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से काउंसलिंग करते हैं, फ्री काउंसलिंग। फ्री काउंसलिंग है, तो यहाँ से क्या स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिल पाता है, आप बता पाएंगे? स्टूडेंट्स जो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट एंट्रेंस देते हैं, हाँ, लाइक वेस्ट बंगाल जेई, नीट एंड ऑल मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, ये सब एंट्रेंस का एक स्कोरिंग होता है। वो स्कोरिंग का बाद काउंसलिंग होता है गवर्नमेंट प्रोसेस से। तो उसका जो लास्ट ईयर का क्या रैंक था, इस ईयर में वो रैंक में मिलेगा क्या, ये सब रिजल्ट निकालने के बाद यहाँ पे जो कॉलेज लोग का काउंसलिंग एकेडमिक काउंसिलर है, वो लोग गाइड कर सकते हैं। तो बच्चे का यही फ़ायदा है कि उसका फीस स्ट्रक्चर, प्राइवेट में जाएगा तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसका हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, इसका एकेडमिक टीचर क्या है। एंड और एक बात है स्टूडेंट्स का, जो स्टेट गवर्नमेंट का क्रेडिट कार्ड 10 लाख तक क्रेडिट कार्ड का एक स्कीम है, वो स्कीम लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है, वो यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बैंक लोन का क्या प्रोसीड्योर है, ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सर मैंने देखा यहाँ पर एयरफोर्स की भी टीम है, हाँ। तो वो क्यों है? तो एयरफोर्स क्या है, बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या, कौन सा एज का बाद क्या क्राइटेरिया है, एयरफोर्स में कौन सा एंट्रेंस देना पड़ता है, ये सब इंफॉर्मेशन फ्री में मिलेगा यहाँ से। यहाँ से। तो और भी कोई आया हुआ है ऐसा जो मतलब क्या बोलते हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट हो? नहीं, सरकारी इंस्टीट्यूट अब नहीं है इधर। खाली एयरफोर्स ही है। धन्यवाद सर, आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। दीपक सिन्हा राय, कैरियर प्लानर, एडुकेयर, चीफ मेंटर। थैंक यू सर। চিনতে পারছেন না তোমাকে? শ্রাবণ দিদি, শ্রাবণ দিদি চিনতে পারছেন আমাকে? হ্যাঁ, শ্রাবণ দিদি। This is a very new initiative. हमने extra course batch गाड़ी ना কলেজ নয়, আমাদের সব কলেজ থেকে আমরা লোকাল ডেলিগেটেড বিসিএস এবং এইচি আছে। নিজের রেফারেন্স प्रेस मीडिया। ম্যাডাম আমার ছবিটা ভালো তুলবেন, দেখাবেন তো কাউকে নেন বা আপনি নিজেও তো দেখবেন।
हेरिटेज की एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं। कि आज हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो है 6 संस्थाएं एक साथ चल रही है हमारे वहाँ पे, रूबी हॉस्पिटल के बगल में है, और इसमें प्री नर्सरी से लेकर के पीजी तक सारे कोर्सेज रफली जितने आजकल डिमांड में हैं, जिसमें कि बच्चे अपने करियर आगे बना सकें और भारत को एक अच्छा भविष्य मिल सके, उसके प्रति हम लोग कर्मबद्ध हैं। और करीब 10,000 बच्चे डेली हमारे कैंपस में आते हैं पढ़ने के लिए। खास करके हमारे स्कूल में प्री नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक की सारी पढ़ाई होती है। IGCSE बोर्ड भी है, IBDP बोर्ड भी है, इंटरनेशनल बैकलरेट, और करीब करीब हर साल हमारे यहाँ से बच्चे उत्तीर्ण रिजल्ट निकाल दे करके इंडिया में टॉप 5 में हर साल ही हमारे बच्चों का पोजीशन रह रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है 14 डिपार्टमेंट में हम लोग इंजीनियरिंग दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट में 6 डिपार्टमेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में, और MCA है। ये अंडर द बैनर हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चल रहा है। आज हम लोग अपने 25वें वर्ष में पाँव रखने जा रहे हैं, तो सबकी वेल विशेज, हमारे ट्रस्टीज़ का साथ हमारे साथ इतना दिन से। अभी आपके ट्रस्टीज़ कौन हैं? ट्रस्टीज़ देखिए हमारे हैं टोटल 22 ट्रस्टी। मेजरली कुछ एक नाम जो अभी मैं बोल सकता हूँ, जैसे हमारे कॉलेज के चेयरमैन जो हैं HIT के, रूपा एंड कंपनी के हैं श्री PR अग्रवाला जी, और ये सारे ट्रस्टीज़ अंडर कल्याण भारती ट्रस्ट हैं, जिसके चेयरमैन हमारे माननीय श्री HK चौधरी जी हैं, जो ऑल्सो चेयरमैन एंड MD है विक्रम सोलर के। उसके अलावा हमारे जैसे संजय अग्रवाल जी हैं फ्रॉम सेंचुरी प्लाईवुड, सज्जन भजंका जी हैं सेंचुरी प्लाईवुड से, हमारे वाइस चेयरमैन हैं पहाड़पुर कूलिंग टावर्स के विक्रम स्वरूप जी हैं, गौरव स्वरूप जी हैं, सिद्धार्थ स्वरूप जी हैं, पैटर्न इंडिया से हैं हमारे चेयरमैन हेरिटेज बिजनेस स्कूल मिस्टर HP बुधिया जी हैं, हमारे चेयरमैन हेरिटेज कॉलेज जो BA BCom BSc की कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसमें हमारे संजय अग्रवाल जी चेयरमैन हैं, विशंबर सरन जी हमारे चेयरमैन हैं। हमारे एक BA LLB की लॉ कोर्स है, उसमें है हमारे केवेंटर एग्रो जो है, बहुत बड़ी कंपनी है, आज की डेट में कॉर्पोरेट्स में एक नाम है, उनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री MK जलान जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। इसी प्रकार से करीब 22 ट्रस्टी हैं, हमारे चितलांगिया जी हैं, और भी बहुत सारे दुगर जी हैं, कोया जी हैं, तो बंसल जी हैं स्कीपर के। तो ये एक इतनी पैशनेट टीम है जो आज हेरिटेज, जो भी किसी से भी अगर आप हेरिटेज का नाम लेते हैं तो वो हेरिटेज को इसीलिए जानते हैं बिकॉज एक पैशन ड्रिवन और एक पैशन से ये कॉलेज और इंस्टीट्यूशन संस्थाएँ बनाई हुई हैं, ताकि बंगाल की पब्लिक को कहीं और जाना नहीं पड़े, इसी शहर में उत्तीर्ण ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो दे सकते हैं। हमारे 2016 में हम लोगों ने हेरिटेज कॉलेज स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग BA इंग्लिश ऑनर्स, BCom ऑनर्स, BSc फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स, इस साल हम लोग BA साइकोलॉजी और BSc साइकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, MA भी इन इंग्लिश में स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत डिमांड है पब्लिक की। BA LLB में हमारी सीट्स कुछ कम थी, 120 थी, अभी 180 सीट्स हो गए। उसमें बहुत अच्छा बच्चों से हम लोग को यहाँ पे प्रोत्साहन मिल रहा है, और सीट्स बढ़ाने के लिए तो हम लोग सीट्स बढ़ा रहे हैं। और क्वालिटी एजुकेशन देने में देखिए, जैसे अब मास्टर्स में बोलिए तो MCA है, MBA है, MBA में हमारे मार्केटिंग बोलिए, फिनेंस बोलिए, मैनेजमेंट बोलिए, HR, MIS, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, ये नया हम लोग इस साल चालू किए। इसी प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज चाहे बोलिए आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बोलिए तो वहाँ पे हेरिटेज के बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, चाहे स्मार्ट बंगाल हैकाथॉन बोलिए उसमें हमारे बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले नासा डे के दिन, स्पेस डे के दिन हमारे बच्चे स्पेस में बहुत अच्छा हैकाथॉन किए, भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन हुआ, उसमें फर्स्ट रनर अप हुए, जहाँ पे हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया क्योंकि वो जीते। अभी हल्ट प्राइज़ हुआ, उसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छा किया, IIT बॉम्बे में जाकर के फिर पार्टिसिपेट किए। TEDx हमारे यहाँ जो एक प्रोग्राम होती है
बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए हेरिटेज फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो टेडेक्स चालू किया। तो टेडेक्स में हमारे बच्चे इस साल काफ़ी गण्यमान लोग आए। CHRO आपके जो CESC लिमिटेड के हैं श्री सुबीर वर्मा जी, वो एक बहुत सेलिब्रेटेड स्पीकर है, वो आकर के कैरियर और ग्रोथ के बारे में बताए। इसके अलावा हमारा जो मेन ऋण है वो स्पाइन आप बोल सकते हैं, हमारी प्लेसमेंट्स हैं और हमारे बच्चे जो अच्छी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं वहाँ पे अपना नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे आपके छोटे मोटे कंपनीज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मेजर हायरिंग करते हैं जैसे कि आपके TCS है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, IBM है, ये सब जगह ही हमारे बच्चे कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। अभी फिनेंस में जैसे KPMG है, डेलॉयट है, अर्नेस्ट एंड यंग है, ये सब पोजीशन पे हमारे बच्चे अब डायरेक्टर जैसे लेवल के पोजीशन पे जा चुके हैं। अगर आप PSUs की बात करें जैसे इंडियन ऑयल है, जैसे आपके खैर वो तो सर आप जो बोल रहे हैं वो तो बच्चे जाएंगे ही जी। स्कूलों से अगर कॉलेजों से बच्चे निकल के अगर अच्छी जगह नहीं जाएंगे मेरा तो कहने का मतलब ये है कि हर फील्ड में हमारे बच्चे जा रहे हैं। आज इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन हुआ उसमें हेरिटेज से 5 साइंटिस्ट थे और वो अलग अलग डिपार्टमेंट से थे। कोई एक ही डिपार्टमेंट या कोई एक ईयर का बच्चा नहीं था, उसमें केमिकल का भी बच्चा था, मैकेनिकल का भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का भी था। तो क्या है, और 2017, 2013, 2022 पास आउट बच्चे, ये सब तरह के बच्चे उसमें। आज हमारे अभी इस साल हमारा बच्चा बायोटेक्नोलॉजी से एक बच्चा है वो ऑल इंडिया गेट रैंक 1 लेकर गया 2025। उसके पहले 2019 में हमारी एक बच्ची साइंस का कोच है, वो गेट में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 लेकर। ये जो ऑल इंडिया 1 आना ये बड़ी बात है और ये कैलकाटा और बंगाल से ये बच्चे निकल रहे हैं, हेरिटेज से निकल रहे हैं। इससे हम लोग खुद अपने आप को बहुत गौरवान्वित फील करते हैं और ये जानते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और इसी दिशा में हम लोग को लगे रहे। थैंक यू। आप अपना नाम और डेजिग्नेशन। मैं अरविंद श्रीवास्तव हूँ, जॉइंट रजिस्ट्रार हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू। Go.